Hi guys, so welcome to Prep IS. This is 3-month free crash course UPSC prelims organized by Prep IS. So this course basically started on 17th March and will continue till 20th June. On 27th June you have your prelims exam. 27th June you have your prelims exam. So whosoever are appearing this year shall surely attend all the classes of this crash course. So some salient features of this course that we in this course Prep IS is covering comprehensively covering the syllabus of CSC prelims. Then along with this we have a high quality full length mock test also. The whole syllabus is being taught by faculties who have cleared prelims and mains exam multiple times and also have many years of teaching experience. Along with the static portion, we are also covering, along with the static, we are also covering some dynamic portion also, like current affairs and all these things, because these are very important for UPSC CSC prelims examination. You can also download the study material and notes which are regularly being updated after every lecture on Telegram channel of Prep IAS. On Telegram channel of Prep IAS. You can find the link in the description of the video. You can find the link on description of video, and you can download Telegram channel and join the group. From there, doubt clearing session is also organized on every Sunday. So on weekdays, what faculties do is to take the lecture, and on every Sunday there is a doubt clearing session on Sunday in which students raise their doubts with the help of Google Form, which is being attached in description of the video, right, which is being attached in the description of the video. Then after that, right, doubt clearing session on every Sunday. Then we have also CSET classes included in this. CSET classes is also included in the free crash course. As you know that in CSET you need 33% marks to clear the prelims. Doesn't matter you get 130 marks or 140 marks in paper 1, if you are not scoring 33% marks in CSET examination, then you will not be able to qualify for the mains examination. So CSET is equally important as that of GS examination, right? So do not ignore that paper. So now this is our lecture number 18. The lecture is all about inflation and its measurement. Basically, we are going to analyze CPI, WPI, and how they are used to measure the inflation. Right? In the whole lecture, we will be talking about inflation and CPI and WPI so that we can get a better picture out of that. So inflation क्या होता है? Inflation is defined as a situation in which there is a sustained अनचेक्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. इसको आप बोल सकते हो परसिस्टेंट इंक्रीज. इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. तो वर्ड इंपॉर्टेंट इज परसिस्टेंट, यानी देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज. ऐसा नहीं है कि 2 दिन इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, 2 दिन इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, ऐसा नहीं. देयर शुड बी परसिस्टेंट इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. एंड persistence increase in the good general price level, या फिर इसको बोल सकते हो एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को हिंदी में बोला जाता है हमेशा, इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, राइट. इट इज हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति. सो मुद्रास्फीति एक वो सिचुएशन है जिसमें देयर इज अ कंटिन्यूअस यानी सतत, सस्टेन मतलब सतत, यानी जो गुड्स और सर्विसेज यानी जो पदार्थ और सेवाएं हैं उनके मूल्य में सतत तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, उस सिचुएशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति, राइट. सो इससे क्या होता है, कभी भी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है देयर इज ऑलवेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी. मतलब आज से जो 5 साल पहले 10 रुपए की वैल्यू रही होगी, आज के टाइम पे 10 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है. क्यों नहीं है? द मेन कॉज इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ने इस 10 रुपए की वैल्यू को कम कर दिया है. सो विद एवरी सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, राइट. और इसको बोल सकते हो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी फॉल हो जाती है. इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बोलो या फिर इसको परचेजिंग पावर ऑफ मनी बोलो, क्योंकि पहले जो 10 रुपए में आप खरीद पाते थे अब उसका आधा भी आप 10 रुपए में नहीं खरीद पाओगे, राइट.
ठीक है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। इसके कॉजेज हैं बेसिकली। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज inflation can be divided into two parts. One is demand pull inflation and second is your cost push inflation, right? So what is demand pull inflation? Demand pull inflation अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखा होगा तो आपको आसानी से अभी तक समझ में आ गया होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है ना, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और सप्लाई कम रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई सप्लाई से ज्यादा होगी तो इस केस में क्या होगा आपका, बताओ मेरे को। जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कंडीशन शॉर्टेज की रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरी कंडीशन है जब एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, आपके पास सरप्लस रहेगा। सरप्लस में क्या होती है, हमेशा कॉस्ट रिड्यूस होती है। बट जब शॉर्टेज होता है यानी जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो एग्रीगेट सप्लाई से तो हमेशा शॉर्टेज होती है, और शॉर्टेज से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, राइट। दिस पोजीशन योर इक्विवेलेंट। सो ये जो पोर्शन है, जो ये कॉलम ए है और ये जो बी है, ठीक है, तो ए है, इस ए वाली सिचुएशन में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, आपका सरप्लस रहेगा, ठीक है। और बी वाले पोजीशन पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस केस में क्या रहेगा, आपका शॉर्टेज रहेगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना जिसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, उस केस में आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि डिमांड आपकी पुल हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। पहले आपका इक्विवेलेंट यहाँ पे था, मार्केट इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था, अभी खिसक के यहाँ पे आ गया है। दैट मीन्स आपकी जो नेशनल इनकम है इंक्रीज हुई है, उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जब मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था, हमने जब पढ़ी थी इनकम इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट, जब मैंने आप लोगों को बताया था, इनकम इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि विद द चेंज इन द इनकम, जैसे जैसे इनकम आपकी, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को चीज बताई थी। और जबकि प्राइस के साथ क्या होता है, जब जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। इफ यू रिमेंबर दिस वाज द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भले ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में या एग्जाम में कम पूछी जाती हो, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी है वो आप लोग देख लेना उस चीज को, और जहां पे जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां पे वो कंसेप्ट को फिर से ब्रीफ में रिवाइज कराता जाऊंगा, ठीक है। तो A is the condition of surplus and B is the condition of shortage, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली दिस कंडीशन इज नोन एज द इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली क्यों हुई है, सबसे पहले मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। आप लोग मेरे को यहाँ कमेंट करके बताओ, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होगा, व्हाई। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज क्यों होगा या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले टॉपिक हमने लिए थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अगर फॉरेक्स इंक्रीज होगा तो भी आपका इन्फ्लेशन होगा, उस केस में भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होगा। मुझे कमेंट करके बताओ व्हाई, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में आप लोग मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे क्योंकि ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा इससे। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, मनी प्रिंट होते हैं, मनी प्रिंटिंग होती है। मनी प्रिंटिंग कब होती है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है
तो आपकी नेशनल इनकम यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द इनकम ज्यादा होती है, यानी इनकम ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस होंगे, तो एक चीज बताओ मेरे को, जब डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो ये YD इज योर डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगा या नहीं हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम आपका बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कम हो रहे हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा मनी सप्लाई रहेगा, आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अनदर पॉइंट ये भी आप लोग मेरे को बताओगे कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से और इंपोर्ट डिक्रीज होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आता है। देखो ऐसे बेसिक कंसेप्ट ही, बेसिक क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। द मेन चीज इज कि आप लोग अपना दिमाग लगा लो इन सब चीजों में, कि ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंक भी कर दिया है, एक्सपोर्ट को डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के साथ लिंक करो। मैंने आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों चीजें बताई थी। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि एक्सपोर्ट बढ़ने पे या इंपोर्ट कम होने पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे को सारे ये वाले पॉइंट, कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होगा, फॉरेक्स इंक्रीज होने पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा, डायरेक्ट टैक्सेस कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा, इंपोर्ट्स कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, बहुत सिंपल है, ये सब हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन कम्स योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब मैं आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करूंगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसकी फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जब फैक्टर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है तो मार्केट प्राइस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ना। तो दिस इज नोन एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फैक्टर कॉस्ट क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट। सो जब फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो तो व्हाई, सो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसके दो पहलू हैं, एक तो है आपका कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, फिर से इन्फ्लेशन की कंडीशन बनेगी, फिर भी यहाँ पे शॉर्टेज ही, जो हमने पीछे बात करी थी, जो हमने यहाँ पे चीज देखी थी शॉर्टेज वाली, बनेगी यहाँ भी शॉर्टेज की कंडीशन ही, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो एग्रीगेट शॉर्टेज क्रिएट हुई है ना, वो डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं हुई है, वो एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से हुई है। एग्रीगेट सप्लाई कम क्यों हुई है, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूसर है उनको रॉ मटेरियल सब महंगे में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लेवल को कम कर देंगे। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन लेवल को कम कर देंगे तो अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, फिर क्या कंडीशन क्रिएट होगी, यहाँ पे शॉर्टेज की कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो द थिंग इज कि दोनों में ही शॉर्टेज हो रहा है, दोनों में ही शॉर्टेज हो रहा है, बट यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से शॉर्टेज हो रहा है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, शॉर्टेज हो रहा है, सॉरी। ठीक है, सो अब किस किस कारण की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने की वजह से बिल्कुल हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये वैल्यू में एमपी में, यानी जो मार्केट प्राइस है, एमपी इज योर मार्केट प्राइस, एफसी इज योर फैक्टर कॉस्ट, ये हमने नेशनल इनकम वाली चैप्टर में डिस्कस किया था। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, एंड इट इज सब्सिडीज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसको हमेशा मार्केट प्राइस में से रिड्यूस कर देते हैं। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएंगे तो मार्केट प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब सब्सिडीज कम हो जाएंगी तो मार्केट प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होगी। देन वी हैव होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, मतलब जैसे अभी जब कोरोना आया था आपका लास्ट ईयर मार्च में, आपको याद होगा, तो जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हैंड सैनिटाइजर्स थे, हैंड सैनिटाइजर्स की सप्लाई कम हो गई थी, हैंड सैनिटाइजर्स की सप्लाई कम हो गई थी। व्हाई, बिकॉज देयर वाज अ फिनोमिना नोन एज होर्डिंग। होर्डिंग को बोलते हैं बेसिकली
स्टॉक बना के रखना, मतलब जो ब्लैक मार्केटर्स होते हैं ना वो स्टॉक को दबा लेते हैं ताकि जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा कम हो जाएगी ना तो प्राइस एकदम से बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही वो प्राइस बढ़ेंगे ना तब वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करेंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक एक्ट आती है जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, तो इसका इस एक्ट का काम बेसिकली यही है, वो कमोडिटीज जो एसेंशियल हैं एक पर्सन की लिविंग के लिए, वो कभी भी होर्डिंग या स्पेकुलेशन की वजह से उनका कभी भी प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, देन कम्स द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यहाँ भी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मैंने लिखा है और यहाँ भी मैंने डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लिखा है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होगा। ठीक है, रिलेट इट विद एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, रिलेट विद एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड देन टेल मी कि हाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल बी देयर, कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से यानी करेंसी यानी रुपए में गिरावट की वजह से आपका मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति कैसे आएगी। ठीक है, नाउ इसको हम किस किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो यहां से समझो आप लोग, सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन होता है ना वो मनी सप्लाई का होता है। मनी सप्लाई में आपने CRR सुना होगा, इट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश नहीं सुना तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि जो बैंक्स को ये RBI के पास अपने टोटल कैपिटल का कुछ परसेंट, करंटली ये लगभग आपका 18% के आसपास है, एक बार चेक कर लेना, कुछ नहीं सॉरी 4% के आसपास है ये, SLR 18% के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, एक बार ये डेटा चेक कर लेना, 4 से 5% के आसपास है। ठीक है, इतना परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल बैंक्स को RBI के पास डिपॉजिट रखना होता है। ठीक है, डिपॉजिट रखना होता है। तो RBI क्या करती है, जब आपका मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होता है ना, मनी सप्लाई करने के लिए कम करने के लिए क्या कर देगी, वो CRR बढ़ा देगी। CRR बढ़ा देगी मतलब 4% से अगर उसने इसको 5% कर दिया तो बैंक्स को अपने कैपिटल का 5% RBI के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके पास लोन देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। सेम गोज विद SLR। SLR का भी सेम कंसेप्ट होता है। SLR में क्या होता है आपका, यहाँ पे तो सिर्फ आप अपने कैपिटल रख सकते हो, यानी लिक्विड मनी रख सकते हो सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज, करेंसी, गोल्ड ये सब रख सकते हो, इसको आप अपने पास रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे CRR को आप RBI के पास रखोगे, ये लगभग 18 या 19% के आसपास होगा। तो अगेन जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो RBI क्या करेगी, SLR का परसेंटेज बढ़ा देगी। जब SLR का परसेंटेज बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट तो बैंक्स के पास जो ये लिक्विड एसेट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कम लोन दे पाएगी। जब वो कम लोन दे पाएगी आपका, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जब वो लोन कम दे पाएगी तो अल्टीमेटली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द SLR, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। देन कम्स योर रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको रेपो रेट पहले भी बताया है कि बैंक्स RBI से शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करते हैं। ठीक है, और RBI उसके बदले में उसको पैसा देती है, जैसे 10 लाख रुपए दे दिया फॉर 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के लिए 10 लाख रुपए दे दिया। अब बैंक इसके बदले में इसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, 5%, 6%, 7%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो बैंक RBI को पे करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। करंटली ये 4% है। तो जब आपका मनी सप्लाई ज्यादा होता है ना मार्केट में, तो क्या करता है, RBI रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। जब रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो अल्टीमेटली बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा RBI को। जब बैंक RBI को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो अल्टीमेटली बैंक भी तो आगे कस्टमर्स को इंक्रीज इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा या नहीं देगा, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो कस्टमर्स क्या करेंगे, अभी लोन को लेना प्रिवेंट कर देंगे, मतलब अभी लोन नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे थोड़ा रुक जाते हैं, जब बाजार में मंदी आ जाएगी तो लोन सस्ते हो जाएंगे तब हम लोन लेंगे। ठीक है,
तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, देन कम्स द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी ये सिचुएशंस आती हैं कि आरबीआई बैंक से पैसा मांगती है, आरबीआई बैंक से पैसा मांगती है, यानी बैंक क्या करेगा, बैंक इसको देगा 10 लाख रुपए 24 घंटे के लिए। ठीक है, और आरबीआई इसको बदले में इंटरेस्ट रेट पे करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे करेगा। तो जो ये इंटरेस्ट रेट है ना, जो आरबीआई बैंक को पे कर रहा है, दैट इज नोन एज योर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब जब मार्केट से मनी सप्लाई ज्यादा होगा, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। जब वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी तो एक चीज बताओ मेरे को, फिर बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स कस्टमर को देने की जगह आरबीआई को देना प्रिफर करेगा ना पैसा, आरबीआई को देना प्रिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे देने में रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो अब जब बैंक्स को आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बैंक्स आरबीआई को पैसा देना पसंद करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क है ही नहीं आरबीआई के पास, तो और कस्टमर के पास रिस्क ज्यादा है। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के बैंक आरबीआई मनी सप्लाई को कम करता है, और इस वजह से आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। देखो याद रखना थंब रूल कि इन्फ्लेशन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए ना, इन्फ्लेशन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए, उसको हमेशा मनी सप्लाई से रिलेट करना, और किस तरीके से आप मनी सप्लाई को कम कर सकते हो। यदि उनमें से कोई भी ऑप्शन, जो एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दिया होगा, यदि वो मनी सप्लाई को कम कर रहा है, तभी वो इन्फ्लेशन को आपको कम कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देन कम्स योर फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, वैसी वैसी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये बोलता है फिलिप्स कर्व। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिक पोस्टुलेट है ना, जो बेसिक आइडिया है, उसका बेसिक आइडिया ये है कि जब इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रोड्यूसर्स की, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगी। जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका, तो सप्लाई कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, लो नीड ऑफ लेबर, क्योंकि प्रोडक्शन कम है ना, सो लो नीड ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की जरूरत कम पड़ेगी। जब लेबर की जरूरत कम पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये आइडिया है फिलिप्स कर्व का। ठीक है, बट ये सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल है, और ये जो आइडिया है ना फिलिप्स कर्व का, 1970s में रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ से ये पॉइंट। 1970s में जब आपके ऑयल क्राइसिस हुए थे ना, जब आपके ऑयल क्राइसिस हुए थे, तब फिलिप्स कर्व हमारा रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, दोबारा से सुन लो। फिलिप्स कर्व बोलता है कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो लेबर की नीड कम पड़ेगी, जब लेबर की नीड कम पड़ेगी तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, वाई बताओ आप मेरे को, हाउ। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हारोड डोमार मॉडल से रिलेट करो इसको, हारोड डोमार मॉडल। ठीक है, हारोड डोमार मॉडल से रिलेट करो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। डीएफसीएफ क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रीजन बताओ वाई। हारोड डोमार मॉडल में आपको बता देता हूं यहाँ से, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी। इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू कैपिटल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आईसीओआर। आईसीओआर क्या है आपका,
इंक्रीमेंटेड कैपिटल आउटपुट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपके दिमाग में एक कंसेप्ट जो स्ट्राइक होना चाहिए ना, वो होना चाहिए हारोल्ड डोमार मॉडल। जिन्होंने वीडियो देखी है प्रीवियसली, आप लोग मेरे को बताओ हारोल्ड डोमार मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था, कौन से 5 ईयर प्लान का जो आधार था वो हारोल्ड डोमार मॉडल था। कमेंट करके बताओ मेरे को आप लोग ये। और इसके साथ साथ ये और बताओ, क्या जीएफसीएफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। भाई मेरे को एक चीज बताओ, जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, उनके पास ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो नई नई मशीन्स खरीदेंगे, ठीक है, नई फैक्ट्री खरीदेंगे, दैट इज हाउ कैपिटल बिल्ड होगी या नहीं होगी, कैपिटल बिल्ड होगी या नहीं होगी, तो जीएफसीएफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सो ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाना चाहिए। जब हम नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज होगा या नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा ना। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव क्यों होगा, क्योंकि ये पुअर्स को भी इक्वली, पुअर्स को भी इक्वली इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ पुअर्स ज्यादा अफेक्टेड क्यों होंगे, पुअर्स ज्यादा अफेक्टेड क्यों होंगे, वाई। जब भी इन्फ्लेशन होता है, मेरे को इकोनॉमिक टर्म्स की भाषा में आप लोग ये बताओ कि जब भी आपका इन्फ्लेशन होगा तो रिच से ज्यादा यानी मीडियम क्लास से ज्यादा पुअर्स पे फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों। ठीक है, इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन से बढ़ेंगी ना। ठीक है, इसका जवाब मेरे को चाहिए, रिलेट विद मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसको रिलेट करके बताओ मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, अब आप मेरे को सिंपल ये बताओ, व्हाट वाज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज कैपेसिटी टू बाय एन एडिशनल यूनिट, राइट, कैपेसिटी टू बाय एन एडिशनल यूनिट। भाई जब ये एडिशनल यूनिट महंगा हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल कैपेबिलिटी या मार्जिनल कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी ना, आप यानी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो मार्जिनल कैपेसिटी है, ये पुअर्स की कम होती है या रिच की कम होती है, ऑब्वियसली पुअर्स की कम होती है ना, रिच के पास तो पैसा है, वो फालतू की चीजें भी खरीद लेते हैं। बट तो ये कंसेप्ट हम आम भाषा में बोलते हैं ना, फालतू की चीजें खरीदना, इसको बोलते हैं मार्जिनल कंसेप्ट। फालतू की चीजें खरीदना, ये होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट हमेशा पुअर्स की ज्यादा होती है। मार्जिनल कॉस्ट, या ऐसे बोलो मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट, यूटिलिटी वर्ड हटा दो, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा पुअर्स की ज्यादा होती है। ठीक है, और रिच की हमेशा कम होती है। इस वजह से इन्फ्लेशन का हमेशा रिग्रेसिव इंपैक्ट होता है और पुअर्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। नॉर्मली सबको पता था पुअर्स इफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल इनकम यानी जो उनकी पैसे, उनके पास पैसे होते हैं वो कम होते हैं, और रिच के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक आम भाषा में लिखने की जगह इसको आप मार्जिनल कॉस्ट की तरीके से डिफाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हो, तो इकोनॉमिक्स की टर्म्स को, अब जो आम भाषा है उसको इकोनॉमिक की टर्म्स में बोलना सीख जाओ। ठीक है, देन इन्फ्लेशन से हमेशा रियल इनकम कम होती है। क्यों, रियल क्या होता है, हमेशा रियल होता है आपका एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, एक बताया था आपको रियल, दूसरा मैंने आपको बताया था नॉमिनल। ठीक है, दोनों के बीच का आपका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉमिनल हमेशा होता है करंट रेट, मतलब करंटली आज के समय आपकी क्या इनकम है। बट जब आप इनकम देखोगे, सपोज आज के टाइम पे से नवंबर, या ऐसे बोलो नवंबर 2020 में आपकी इनकम थी पर मंथ 30,000, राइट। अब मैंने आपको बोला 2 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से आपकी इनकम 10% बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है, 30,000 का 10% कितना हो गया आपका, 3,000 रुपए हो गया, यही होगा ना शायद। मैथ्स में वही गड़बड़ हो तो आप लोग सही कर लेना खुद ही, तो 3,000 ही होगा ना, है ना। तो 3,000 रुपए बढ़ गया, पर इन्फ्लेशन रेट आपका 5% रहा है नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 1 अप्रैल 2021 तक। तो इन्फ्लेशन रेट रहा है
वो आपका 5% रहा है। तो ये जो आपकी 10% इनकम बढ़ी है वो 10% थोड़ी ना बढ़ी है, वो तो सिर्फ 5% बढ़ी है ना, आपके खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना। तो जो रियल इनकम ग्रोथ हुई है वो तो सिर्फ 5% हुई है, 10% थोड़ी ना हुई है। सो आपकी जो रियल इनकम है वो हमेशा डिक्रीज होगी इन्फ्लेशन से, और जब इन्फ्लेशन से रियल इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी सेविंग्स डिक्रीज होंगी। जब कैपेसिटी टू सेव डिक्रीज होगा, जब कैपेसिटी टू सेविंग्स डिक्रीज होंगी तो सेविंग्स डिक्रीज होंगी, और जब सेविंग्स डिक्रीज होंगी तो आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, जब इन्फ्लेशन ऐसे आपका रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका, रियल इंटरेस्ट रेट होता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो जब आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा, जब आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। पहले ये 3 था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10 था और इन्फ्लेशन रेट 3 था, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 7% हो गया। अब ये आपका 5% हो गया, इन्फ्लेशन रेट 5% हो गया, तो ये कितना हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, कितना हो गया 5% हो गया, नहीं हो गया। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात कर जब मैं कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ जो बैंक्स आपको आपके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, अब सपोज आपका जो करंट इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई दे रहा है वो दे रहा है 7% दे रहा है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 7% हो गया। इन्फ्लेशन रेट है आपका 3%, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ 4% ही हुआ ना। और आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7% है, पर आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ के हो गया 5%, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ 2%। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने पे रियल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो रियल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बैंक में डिपॉजिट्स करना पसंद नहीं करोगे, आप लोग क्या करोगे, आप गोल्ड खरीद लोगे, आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे। ठीक है, मतलब अपनी सेविंग्स को आप इस डायरेक्शन में क्या बोलते हो डाइवर्ट कर दोगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दोगे, इससे क्या होगा सेविंग्स कम होंगी, अगेन इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, और जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इन दोनों को आप मेरे को वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के साथ रिलेट करो, वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के साथ रिलेट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, वीसीएस सर्कल, जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोग मेरे को इसका जवाब कमेंट में दो। ठीक है, नाउ अब हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। जो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ ना, आप कमेंट में करके बताओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट में करके जरूर बता देना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, वर्ड याद रखना ऑन इकोनॉमी, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो मेजर करते हैं हम डब्ल्यूपीआई से। ठीक है, हमेशा नॉट ऑन पीपल, इकोनॉमी पे क्या अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज नोन एज डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। पीपल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो फर्क पड़ेगा सीपीआई में, जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, कभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि सर्विसेज का कभी भी कोई भी होलसेल मार्केट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होलसेल मार्केट आपका गुड्स का होता है। ठीक है, ये जो डब्ल्यूपीआई है ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बैठता है। देन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली आता है, 2009 तक ये वीकली आता था, उसके बाद से इसको मंथली पब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, देन जो इसका बेस ईयर है वो है 2011-12, और इसके अंदर 697 कमोडिटीज 697 कमोडिटीज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ कमोडिटी ग्रुप्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, 3 कमोडिटी ग्रुप्स होते हैं हमेशा डब्ल्यूपीआई में। पहला होता है आपका प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। पहला क्या है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा है फ्यूल एंड पावर, तीसरा है आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। तो इस प्राइमरी आर्टिकल्स के 109 आइटम्स हैं, फ्यूल एंड पावर के 20 आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के 570 आइटम्स हैं, टोटल कितने हो गए 697 आइटम्स हो गए। तो जो इनको वेटेज दिया गया है, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज है 20%, फ्यूल एंड पावर का है 15%, ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का है 65%। ठीक है, तो कभी भी प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसे पता होना चाहिए, डब्ल्यूपीआई के अंदर 3 कमोडिटी ग्रुप बनते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स,
फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। इस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली, तो कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए आपका सवाल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। सो दिस इज कमोडिटी ग्रुप्स इज प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स आर 109, 20, 570 और वेटेज इज 20%, 15%, 65%। फूड आइटम्स का जो इसमें टोटल WPI में वेटेज रहता है वो लगभग 24% के आसपास रहता है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में से डेटा उठाया है। ठीक है, आप लोग इसको अपडेट कर लेना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, 24 से 25% की रेंज में ही रहता है। कहने का मतलब है आपको एक आइडिया होना चाहिए, फूड आइटम्स का वेटेज हमेशा WPI में 1/4 रहता है। ठीक है, अराउंड 1/4 रहता है, 1/4 रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देन WPI कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। पॉइंट टू पॉइंट मेथड में क्या होता है, अगर हमें दिसंबर 2021 का WPI कैलकुलेट करना है, हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर देखेंगे। क्या देखेंगे? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर देखेंगे। मतलब अगर हमें दिसंबर 2021 का कैलकुलेट करना होगा तो हम दिसंबर 2020 की वैल्यू लेंगे और उसके बेसिस पे 2021 का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इफ आई से दैट WPI ऑफ वन, मुझे यहाँ से इन्फ्लेशन निकालना है, मेथड्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन यूजिंग WPI, राइट। तो हमने क्या देखा, दिसंबर 2020 का हमने ले लिया 176.8, दिसंबर 2021 का हमने ले लिया 182.8। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा इन्फ्लेशन रेट का, WPI ऑफ दिसंबर 2021 माइनस WPI ऑफ दिसंबर 2020 डिवाइडेड बाय WPI ऑफ दिसंबर 2020। तो इट इज 182.8 माइनस 176.8 डिवाइडेड बाय 176.8 इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो समथिंग 3.4-3.5% के आसपास आएगा। तो हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया? इन्फ्लेशन रेट हो गया आपका 3.4%। ठीक है, क्लियर है। दिस इज पॉइंट टू पॉइंट मेथड। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें पॉइंट टू पॉइंट मेथड से WPI को यूज करते हुए इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले से रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन कम्स योर 52 वीक एवरेज इन्फ्लेशन। दूसरा मेथड है आपका 52 वीक एवरेज इन्फ्लेशन। पहला मेथड क्या है आपका? पॉइंट टू पॉइंट मेथड है। दूसरा है आपका 52 वीक एवरेज इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, हमने जो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा ना, दिसंबर का आ गया 3.4%, ऐसे आपका नवंबर का आया होगा, ऐसे आपका अक्टूबर का आया होगा, ऐसे आपका सितंबर का आया होगा, ऐसे अगस्त का आया होगा, ऐसे जुलाई का आया होगा, ऐसे जून का आया होगा। ठीक है, तो उन सबका हम एवरेज निकाल लेते हैं। इट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन ओवर द प्रीवियस 52 वीक्स। 52 वीक्स मतलब 12 मंथ्स। दिसंबर का आ गया 3.4%। ठीक है, नवंबर का आ गया, अक्टूबर का आया होगा, ऐसे आपका करते करते जनवरी का आया होगा, डिवाइडेड बाय 12। जो भी वैल्यू आएगी वो 52 वीक एवरेज इन्फ्लेशन रहेगा, यानी 1 ईयर का एवरेज इन्फ्लेशन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका? मंथली इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है, राइट। और यहां से क्या आ रहा है आपका? ईयरली इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देन नेक्स्ट आता है आपका CPI। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, ये बेसिकली आपको जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आम जनता पे कितना पड़ा है वो कैलकुलेट करके दिखाता है। वहां पे हमारा WPI में क्या था, ऑन इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो दिखाएगा, और आपका CPI क्या दिखाएगा, आम जनता पे क्या फर्क पड़ा है वो कैलकुलेट करके दिखाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या इंक्रीज हो रहा है वो दिखाएगा। 2014 से इसको मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरेंस अलाउंस मिलता है उसके लिए भी CPI का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा रिटेल प्राइसेस के आधार पे होते हैं। एक आपका होता है होलसेल प्राइस, दूसरा होता है आपका रिटेल प्राइस। ठीक है, होलसेल प्राइस होता है जो बल्क में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो सामान खरीदते हैं, और रिटेल प्राइस होता है जहां से कस्टमर्स डायरेक्टली खरीदता है। ठीक है, कस्टमर्स डायरेक्टली खरीदता है, वो होते हैं रिटेल प्राइस। तो बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, WPI में सर्विसेज नहीं थे, CPI में आपके सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। WPI भी मंथली पे कैलकुलेट होता है, आपका CPI भी मंथली पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये आपका CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अब तो CSO प्लस NSSO मिलके
क्या बन गए हैं, NSO बन गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये पहले हमारे 4 टाइप के कंज्यूमर्स आते थे, 4 टाइप्स ऑफ CPI होते थे। पहला आता था CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके व्हाइट कॉलर पर्सन, जैसे कि आपका डॉक्टर्स, ठीक है, इंजीनियर्स, CA, ठीक है, ये सब लोग होते हैं। देन CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, देन CPI फॉर रूरल लेबर, ठीक है। तो इन सब CPI में आपके कुछ आइटम्स होते हैं, हर एक CPI में कोई ना कोई आइटम्स होते हैं। जैसे आपके WPI में आइटम्स थे ये सारे प्राइमरी आर्टिकल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स थे, ऐसे आपके हर एक CPI पे कोई ना कोई आइटम्स होते हैं। जैसे आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स में फूड होगा, क्लोथिंग होगा, पान, गुटखा एक्सेट्रा। मतलब ये जो आइटम्स डिसाइड होते हैं ना, वो किस बेसिस पे होते हैं कि उनकी इनकम का कितना परसेंट इन आइटम्स पे जा रहा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दीज आइटम्स। तो व्हेन आई से दैट फूड का वेटेज इसमें 96% है, तो इसका मतलब क्या है, इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की 96% इनकम फूड पे स्पेंड हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का भी एक होता है, एग्रीकल्चर लेबर का भी एक CPI होता है, और रूरल लेबर का भी एक CPI होता है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला CPI है ना, ये हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक लेबर ब्यूरो होता है, वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। देन जो अभी न्यू CPI आया है ना, कुछ चेंजेस आए हैं 2015 में इसमें, तो CSO ने 3 न्यू CPI निकाले 2011 में, तो जो 2015 से लागू भी हो गए थे। सबसे पहले ये CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड, ठीक है। CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड, इनका बेस ईयर रखा गया 2012, ठीक है। ये आप थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, फूड पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है CPI WPI में। तो फूड का जो वेटेज है CPI में, वो अर्बन में 45% से कम है और रूरल में 45% से ज्यादा है, यानी लगभग 50% के आसपास है। इसका मतलब क्या है, अर्बन एरियाज में फूड पे परसेंटेज ऑफ इनकम कम स्पेंड होती है, ठीक है, और रूरल में फूड पे परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादा ज्यादा स्पेंड होती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी भी बात है आपकी, क्योंकि अर्बन एरियाज में लॉट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह भी होती है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह भी होती हैं, तो वहां पे बेसिकली आपका ज्यादा स्पेंड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, काम खाओ पियो सो और काम करो, खाओ पियो सो और काम करो, ठीक है। कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज तो रूरल एरियाज में नहीं होती है ना। तो यहीं से मैं आपको एक लॉ भी बता देता हूँ, दैट इज एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ आपने कहीं ना कहीं टर्म सुना होगा। तो इसका मतलब होता है, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स डिक्रीज हो जाता है। एंजल लो बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे फूड पे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो सैलरी बढ़ी है ना, वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। मतलब डाइवर्ट कहाँ हो जाती है, ट्रैवलिंग में हो जाती है, ठीक है, या फिर मूवीज वगैरह में हो जाती है, ठीक है, और आपका से अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं वो लोग एज कंपेयर टू फूड्स। यानी फूड्स पे उतना ही स्पेंड करेंगे, जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम है ना, उसका ज्यादा परसेंटेज जो इनकम इंक्रीज हुई है, उसका ज्यादा परसेंटेज अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में स्पेंड करेंगे, ठीक है। ये बोलता है एंजल्स लॉ, ठीक है। देन कम्स योर CPI कंबाइंड। CPI कंबाइंड मतलब रूरल प्लस अर्बन। इसको हमने बेस 2012 माना। अगर इसकी 2018-19 में वैल्यू 135.4 है, तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन रेट कितना आया है आपका 35.4%, 35.4%, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कंपेयर टू 2012। नाउ कमिंग टू अनदर टर्म इज कोर इन्फ्लेशन। इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, इसको नॉन फूड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके CPI के आइटम्स होते हैं ना, ये जो भी आपके CPI के आइटम्स होते हैं या WPI, दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, WPI और CPI के लिए, दोनों में से फूड एंड फ्यूल की कैटेगरी को माइनस कर देते हैं। फूड एंड फ्यूल वाले जितने भी आइटम्स है ना, उनके ऊपर होने वाले इन्फ्लेशन को टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं,
क्योंकि ये बोलना इसमें माना जाता है कि ये वॉलेटाइल होते हैं, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है प्राइस। जैसा भी आपने रिसेंटली पेट्रोल और डीजल का प्राइस देखा, ठीक है, सीधा 73 रुपीज से अराउंड अप्रॉक्स 100 रुपीज पहुंच गया था। तो इस वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए ना, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्फ्लेशन रेट में एक्सफ्लू फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके लिए कभी भी कोई स्पेशल इंडेक्स नहीं है, बस WPI और CPI में से फूड एंड फ्यूल वाले आइटम्स को हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट होके आएगा ना, दैट विल बी द कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, देन कम्स योर हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो आप लोग देखो कि इट इंक्लूड्स फूड फ्यूल आल्सो। CPI में आप देखोगे, कोर इन्फ्लेशन में आपने देखा होगा कि फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हैं, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल हमेशा इंक्लूड रहता है एंड ऑल अदर कमोडिटीज भी इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, ये हमेशा WPI के टर्म्स में हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, CPI के टर्म्स में नहीं, हमेशा हेडलाइन इन्फ्लेशन WPI के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देन CSO ने 2014 में एक न्यू फूड इन्फ्लेशन इंडिसेस भी लेके आया। ठीक है, इसमें क्या था आपका, ये सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CFPI, दैट इज CFPI क्या होता है आपका, CFPI इज फूड प्राइस क्यूमुलेटिव या फूड या कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा अर्बन के लिए, रूरल के लिए, देन कंबाइंड के लिए, और इसके लिए बेस ईयर भी अगेन 2012 रखा गया है। ये इंट्रोड्यूस 2014 में किया गया था, पर जो बेस ईयर रखा गया है वो 2012 रखा गया है। ठीक है, देन इसके साथ साथ ना एक और इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से ले लो कि CPI IW का जो रिसेंटली बेस ईयर था उसको अपडेट करके 2016 रखा गया है। देन एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में प्रपोज किया गया था कि इंडिया को ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान प्रोड्यूस होके कहाँ आता है, होलसेल पे आता है, होलसेल से कहाँ जाता है, रिटेल पे जाता है। तो यहाँ पे होलसेल के लिए हमारे पास WPI है, रिटेल के लिए हमारे पास CPI है, फैक्ट्री लेवल इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके लिए PPI को इंट्रोड्यूस किया गया था कि प्रोड्यूसर लेवल पे क्या इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कोई सूचकांक होना चाहिए, यानी उसके लिए भी हमारे पास कोई इंडेक्स होना चाहिए। दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल में WPI, रिटेल में CPI। ठीक है, और फैक्ट्री लेवल पे इट इज PPI, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहाँ से ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर जब हमारे पास PPI आ जाएगा तो हमारे पास प्रोड्यूसर लेवल पे भी इन्फ्लेशन हम नाप सकते हैं, होलसेल लेवल पे भी नाप सकते हैं, रिटेल लेवल पे भी नाप सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन किस लेवल पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन किस लेवल पे ज्यादा हो रहा है हमें यहाँ से ये चीज पता चल जाएगी। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से यहाँ नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी नॉर्मल है, अगर यहाँ पे आके कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कुछ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट की कंपैरिजन में, फैक्टर कॉस्ट सेम ही रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो रहे हैं ना, तो इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो उस एरिया में मे बी गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, WPI CPI और ये सब। ठीक है, इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे। जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है उसमें हम कुछ आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। तो बेसिकली ना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, उसके पैरामीटर्स वगैरह पढ़ने ना थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि उसको पैरामीटर्स को कैलकुलेट भी करके हम देखेंगे कि किस बेसिस पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है और कैसे हमारा मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअल में कैसे कैलकुलेशन होती है ना, वो भी हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आपके लिए जब भी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर दो, पूरी क्लैरिटी आप लोगों को उसके बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रोकते हैं। थैंक यू।